Shucks, this game is so frustrating. Which game you are playing? I'm playing Snake and Ladders. So what happened? Whenever I try to reach at level 100, I just go back down. I can't focus. So what's the problem exactly, Tabu? I can't reach my goals. So these, like, whenever you come down, you feel bad. Yes. So these obstacles are frustrating for you, right? Yeah. Okay, that's the issue. So you want me to help out you in this? Yep. Okay. So Tavishi, exactly what happens is, like, your Snake and Ladders is like exactly what our life is all about. I mean, we keep on trying to reach our goals, but some or the other way, maybe possible some situations, because of some situations or circumstances, or maybe because of any kind of obstacles, we keep on coming down. So first of all, what you have to do is like, you have to select the focus, or you can say the final destiny of yours, or you can say target of yours, where you want to reach. I mean, what I'm trying to explain is, if you're going to set materialistic goals, means like ऐसे goals जो आपको कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको हैप्पीनेस दें, वो आपको आपको उन मेटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के बाद में भी यू हैव टू कंटिन्यूसली पुश ऑन योरसेल्फ, बिकॉज आप अगर उन गोल्स को अचीव भी कर लोगे तो फिर आप दोबारा नेक्स्ट गोल सेट कर लोगे, बिकॉज वो जो कंटेंटमेंट है कि ब्लिसफुलनेस आती है ना, आपको हैप्पीनेस जो आती है वो मेटेरियलिस्टिक गोल से नहीं आती. तो सबसे पहले तो जब अपने गोल्स सेट करो लाइफ में, और आप उस पर जब इतने एफर्ट लगा रहे हो, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो गोल्स वो होने चाहिए जो आपको सच में हैप्पीनेस दे, मतलब बाय हार्ट आपको हैप्पीनेस दे. पहली बात तो वो गोल सेट करो, मटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं, बिकॉज उस मटेरियलिस्टिक गोल पर पहुंचने के बाद में भी आपको नेक्स्ट गोल के लिए आप ट्राई करोगे, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दैट हैप्पीनेस ओवर देयर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द गोल्स दैट गिव्स यू रिच कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस विद इन. Okay, then second thing is, these obstacles help you in the growth. आप जितनी बार ऊपर ट्राई करोगे और some of the other way going down, or you're coming back to your initial or first step, that means you need to work hard. और जितनी बार आप हार्ड वर्क करते जाओगे उतना ज़्यादा आप इवॉल्व होते जाओगे एज ह्यूमन्स. ओके, सो जब आप एज ह्यूमन्स कंटिन्यूसली इवॉल्व होते जाओगे तो these obstacles will not will not mean to you as obstacles or hurdles, but these are kind of milestones in your journey. तो पहली चीज़ तो जो आपको करनी है बेटू वो ये कि जो आप अपना गोल सेट करोगे, उसमें जो आपको अपना गोल सेट करोगे, पहला तो आपको वो गोल सिलेक्ट करने हैं जो कि आपको हैप्पीनेस बाय हार्ट देते हो. ओके, और दूसरा चीज़ ये कि आपको जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपके माइलस्टोन्स होते हैं ग्रोथ में. तो आप अपना फोकस जो है उनकी उस जो आपको माइलस्टोन्स या ऑब्स्टिकल्स हैं उनके थ्रू जो आपको लर्निंग मिलती है उस पर फोकस करो. तो दीज ऑब्स्टिकल्स वी विल लाइक चैलेंजिंग माइलस्टोन्स टू यू एंड यू विल कीप ऑन इवॉल्विंग. ओके, सो कंटेंटमेंट या जो आपको हैप्पीनेस दे गोल्स में, उन पे फोकस करो रादर देन कीपिंग मटेरियलिस्टिक गोल्स. ओके, नाउ इज इट क्लियर? Yes, I won! Yay! So finally you are happy, right? Yeah, these obstacles aren't hard anymore. Very nice. I beat them. Okay. I have another question. Yeah, tell me. So everyone has stress, including kids. Okay. So can you tell me how to resolve that issue? Means you are trying to say that everyone has stress involving kids. Okay. And kids are stressed out sometimes when their parents doesn't have time, when they want a new toy, when they are really bored and everything, so they're kind of annoying that time. But on the same time they are stressed out. So can you tell me how to resolve that issue? Okay, and I think similar to this question when we were walking last night, you asked me another thing, some things, I mean, everybody has stress. That's absolutely true. आपने बोला कि छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, इवन जो टॉडलर्स होते हैं दे आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड आउट एट दैट. उनको अपने टॉय को लेने के लिए स्ट्रेस है, दे हैव अदर स्ट्रेस, आई मीन दे वांट टू हैव दैट अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स. सो डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप यू हैव स्ट्रेस. जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, बिकॉज यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर आई मीन वर्क प्रोफाइल गेट्स एनरिच्ड एंड ऑल दैट स्टफ. सो आपका अरीना या आपकी जो एक सीमा होती है ना स्ट्रेस की, वो बढ़ती जा रही है डिपेंडिंग अपॉन योर एज. तो छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, टॉडलर्स को भी इवन स्ट्रेस होता है. तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस इज ओनली फॉर एल्डर्स, इज फॉर एवरीवन. उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि आप छोटे हो या बड़े हो, उसके बेसिस पर इट्स ओके. सो इट्स बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है. फाइन. सो
पहली चीज़ तो जो आपने मुझे लास्ट नाइट भी आप मुझसे पूछे थे, एंड मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पार्ट पर भी, और वो क्वेश्चन मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा कि छोटे बच्चों को भी इतना स्ट्रेस है, मे बी सम ऑफ द अदर रीजन एड्स अप टू देयर स्ट्रेस, उसको रिजॉल्व कैसा किया जाए, क्योंकि कंटिन्यूसली वो आपके माइंड पे हॉप करता है और आपको बॉदर करता रहता है ना। अब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कैसे करके किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ पे लगाओ। तो सबसे पहली चीज़ तो बेटू स्ट्रेस सबको होता है, जो मैंने आपको अभी बोला कि चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जैसे आप बड़े होते जाते हो आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है, और अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे रिजॉल्व करो। उसकी प्रैक्टिस ये है, चाहे आप आज सीख लो, यू आर अ वेरी यंग किड, तो आप या तो अभी सीख लो तो आप लाइफ में यू विल बी अ वेरी ब्लिसफुल, वेरी हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन। अदरवाइज सबको ये चीज़ सीखनी पड़ती है when they reach a particular age or stage of their life। तो सीखते सब हैं, जो नहीं सीखते वो कभी उस कंटेंटमेंट, उस ब्लिसफुलनेस को, एक कंप्लीटनेस को फील नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट, राइट। तो करना क्या है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड में कंटिन्यूसली ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, ओके। जैसे चलो इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अपने घर में उन्हीं लोगों को अलाउ करते हो जिनके साथ यू आर कंफर्टेबल, ओके। आप अपनी बॉडी में वही चीज़ फीड करते हो जो आपको अच्छी लगती है। आप नेगेटिव, आप खराब चीज़ को खराब अलग रखते हो, स्टेल फ्रूट्स को अलग रखते हो, रॉटन जो चीज़ है उनको अलग रखते हो, यू नेवर फीड ऑन देम, राइट। तो जब आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखते हो कि मुझे क्या अपनी बॉडी के अंदर डालना है, क्या चीज़ मुझे खानी है, क्या चीज़ मुझे पसंद है, आप किसको अलाउ करते हो अपनी लाइफ में, किसको नहीं अलाउ करते हो, तो जो आपका माइंड है ना बच्चे, वो भी आप ही का घर है। आपका माइंड आप पर ओवर पावर कर जाए, दैट मीन्स एक आप अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे जब आपकी लाइफ में आपका जो ब्रेन है वो क्लटर ऑफ थॉट्स बन जाएगा, ट्रैश बिन बन जाएगा। आप जैसा आपका थॉट होगा आप वैसे ही बन जाओगे। मीन्स आप इतनी पावर थॉट को दे देते हो कि वो आपके ऊपर ओवर पावर कर जाता है आपका माइंड, और आप माइंड जो आपको अपने अकॉर्डिंग ड्रैग करता है। आपने से बहुत सारे लोग मिले होंगे आपको जो कुछ से आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है, एंड सम आर वेरी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। आप नेगेटिव को फीड करोगे तो यू विल बी अ नेगेटिव पर्सन, आप पॉजिटिव को फीड करोगे तो यू विल बी अ पॉजिटिव एंड वेरी यू विल हैव अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ ऑरा अराउंड यू, और वो प्रैक्टिस से आता है, राइट। तो हमें क्या चीज़ करनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो पॉजिटिव थॉट्स को फीड करना है, उनको ग्रो होने देना है, और जो नेगेटिव है उनको धीरे धीरे कम करते जाना है। तो आप पहले इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जो चीज़ आपको बॉदर करती हैं, आपको स्ट्रेस्ड आउट करती हैं, पहली चीज़ तो क्या करनी है कि आप उनसे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करो, उस पर से फोकस हटाओ। यू ट्राई टू फोकस ऑन समथिंग पॉजिटिव, समथिंग गुड। और इनिशियली आपको बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, राइट। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी माइंड पर आपकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये बेटू कि जब हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमें पावर ना करे, हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को कंट्रोल ना करे, क्योंकि थॉट्स से मेरे एक्शंस भी उससे कनेक्टेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कभी बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, सामने को हिट कर देते हो, अब्यूज कर देते हो, गलत बोल देते हो, देन यू रिग्रेट, राइट। तो थॉट्स जो होते हैं हमारे एक्शंस को, फिर वही हमें अंदर गुस्सा बढ़ता है तो नेगेटिविटी बढ़ती है, हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हैं, और आप बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स पे जाते हो। तो जब थॉट इतना पावर रखते हैं तो यू शुड हैव अ प्रैक्टिस कि हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स। तो आपको क्या करना है, एक सेकेंड फिर अपन कंप्लीट करते हैं, मैं आपके भी पूछ लूंगी आप क्या बोलना चाहते हो, कि आप अपने थॉट्स को कैसे फीड करोगे वो आप पर डिपेंड करता है। ये आपका माइंड है, ये आपका ब्रेन है, आपको अपने थॉट्स पे, अपनी माइंड पर ग्रिप रखनी है, होल्ड रखना है कि मुझे इस चीज़ को इतनी देर सोचना है, इससे ज़्यादा नहीं। वो आपके हाथ में, वो कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है, राइट। तो अपनी बॉडी में, अपने माइंड में आपको क्या सोचना है, कितनी देर सोचना है, किस इंसान को कितनी देर सोचना है, कितनी जगह देनी है, वो आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है, ओके। तो अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाना सीखो। जिस इंसान ने बेटो अपने थॉट्स को अपने पर कंट्रोल करना सीख लिया ना, वो सबसे ज़्यादा हैप्पी होता है। और पता है जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, दे हैव दिस पावर, वो कंट्रोल कर लेते हैं, उनको पता है किस थॉट को कब रोकना है। मैंने एक बार डिस्कशंस में ये बात भी बोली थी कि हम माइंड गैप्स बनाते हैं, दैट इज़ अ डिटेल, बट अभी आपको इतना ही देखना है कि ये माइंड मेरा है, मुझे इसको क्या देना है क्या नहीं देना वो आप पर डिपेंड करता है। यू शुड पावर योर माइंड, मीन्स लाइक आपके माइंड पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, थॉट्स की आपके ऊपर ग्रिप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? समझ आया? Sometimes like when we try to get distracted, we are like that thing hops on every time. Like the thought actually comes like and hops on your mind whenever you are trying to distract yourself.
So even that, like that, I want to अच्छा, एक ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन तविशी। मुझे पता है कि आपके माइंड में भी ऐसे, और पता है हम जैसे मी एंड यू शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, Yeah. आप मुझसे सारी बातें शेयर कर देते हो, बट कभी कभी ऐसे कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ऐसी कोई बातें होती है जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, है ना। Yeah. कभी कभी आपको लगता है कि मैं मम्मा को क्या बोलूँ, क्योंकि मम्मा भी बॉदर हो जाती है, और कुछ हमारे ऐसे सीक्रेट्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सब अपने पास रखते हैं, कुछ पर्सनल भी होता है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को हम सारी चीज़ें बता देते हैं या बता देनी चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं पर्सनल सीक्रेट्स, और सबकी एक इंडिविजुअलिटी की, स्पेस की रिस्पेक्ट। Maximum it's like 1 to 3, but yeah. मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो कि ज्यादातर आप मुझे बता देते हो, बट कुछ ऐसी बातें होती है जो Yeah. आपको लगता है, फिर आप जब कंफर्ट जोन में आते हो देन यू ट्राई टू Yeah. शेयर इट विद मी। परफेक्टली फाइन, नॉट एन इशू, I बिकॉज don't- ऐसा नहीं है कि आप मेरी प्रॉपर्टी हो, आप जो भी सोचते हो यू शुड ऑलवेज कम एंड टॉक टू मी। कुछ चीजें टाइम लेती हैं, फिर आपको धीरे धीरे लगता है कि ठीक है, अभी आई एम नाउ इन स्टेज जो मैं मम्मा के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो उस केस में बेटू, अगर आपको ऐसा लगता है देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड विद whom you want to share it out, even with your mom also, तो आप उसको क्या करो, यू राइट डाउन इट इन अ पेपर, ओके, और उसको टेयर ऑफ कर देना। उस पेपर को आप टेयर ऑफ करो एंड देन डिस्पोज इट इन द ट्रैश बिन। उससे क्या होगा कि जो भी आपके हार्ट में, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, वो एक तरीके से उसको एक आउटबर्स्ट मिल जाएगा, एक आउटलेट मिल जाएगा, क्योंकि वो थॉट्स हमें कंटिन्यूसली हमारे माइंड में स्ट्राइक करते हैं। आप उसे जब उसे लिख दोगे तो आपके मन से बाहर आ जाएगा विदाउट गिविंग इट अ थॉट कि वो किस फ्लो में जा रहा है। इट्स वेरी नेगेटिव, इट्स वेरी चैलेंजिंग। राइट डाउन ऑन अ पेपर, tear it off and dispose it in the trash bin. Someday I actually tried it back then, like something 1 month ago when I had like a secret. So I tear it off and then it actually works. It's a fact. And like yeah, it got removed by my mind, so I just don't think about it. I just think it's just a random thing. That means it works for you, right? Yeah. It works for me also at times, Tavishi, whenever It's I a fact. Even you can try it. Yes, Tavishi, thank you so much, bacha. Even like at times, you know what, even if I have something in my mind and I'm not able to get rid of it, so I even still, I mean like till today I used to write it down, I tear it off and I just leave it there only. So whenever the like thoughts or anything that disturbs you, either you write it down or share it with your friend. If you don't want to share it with you, that all depends upon you. I mean like हम सबकी एक individual space होती है. Every time parents also need not to hop in kids personal space. That is like everyone is an individual. We all are caretakers or of like this छोटू बच्चा. तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात पेरेंट्स के साथ बता पाते हो। कुछ बातें, और कभी कभी स्पेस देने से भी चीज़ें शेयर हो जाती है, बिकॉज देन व्हेन द किड्स कम्स इन कंफर्ट जोन, दे come and share with you if you have that bond with your kids. So I think ये बहुत ही ज़्यादा I mean like बहुत sensible और बहुत ही sensitive issues हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ बॉदर करती है तो आप उसको लिख के पेपर पे just tear it off and that will definitely will I mean like you will get rid of that particular thought that is disturbing you for so long. Thank you, Mama. Thank God you helped me in this question. I can find a result. So now you are happy? Yep. Okay. सो आई थिंक ये हमारी जो छुटकू मुटकू सी कॉन्वर्जेशंस होती हैं, मी एंड ताविशी शेयर अ लॉट विद ईच अदर। ताविशी, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज लाइक पेरेंट्स आर देयर टू ग्रूम द किड्स, इवन किड्स ऑल्सो हेल्प पेरेंट्स टू ग्रूम अप। मैंने भी अपना जो एक मदरहुड का जो एक एक्सपीरियंस होता है, ताविशी ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई है, मैंने बहुत चीज़ें अनलर्न भी की है, और तब वो भी ग्रो करती है, मैं भी ग्रो कर रही हूँ। हम ऐसे ही दोनों बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। हमें लगा कि लेट्स शेयर इट विद द वर्ल्ड सो दैट एवरीवन कैन गेट अ समथिंग कंस्ट्रक्टिव आउट ऑफ इट। होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, और विल कीप ऑन शेयरिंग दिस you can say. I have many more questions, so wait out there. Yes, we'll keep on sharing. Okay, signing off. Bye. See you later.